Okay, let us start our session because tomorrow I'm not available. Friday is there. That Friday means 12:30 class is not possible. That is why we are going to Mm. have a class right now. This class is just the Okay, sir. alternate of just tomorrow's class. Okay, Okay. Sir, what about morning's class, sir, tomorrow? I'll let you know. I'll let you know. Okay, 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 sir. because Friday is there now. So we have to plan in Yes, different sir. way. I will tell you. Yes, sir. Okay, sir. Now I am going to discuss the properties of divergence today. Now some properties of divergence we are going to be discuss. The heading of this today's class is properties of divergence. Properties of divergence. So I'll explain what is divergence. Already you know, but still I want to tell you. We have some properties to discuss. Sometime in exam they may ask these properties also. So we don't want to take the risk. Divergence. Divergence means divergence means this is the short form we are using. DIV divergence. Suppose if you want to find out divergence of F, डाइवर्जेंस का मतलब है डेल की वैल्यू. डेल मीन्स यू नो ऑलरेडी वन आई डो बाई डो एक्स प्लस कमन Plus J dou by dou Y यस plus एग्जैक्टली j dou by dou plus y K dou plus by dou k Z. dou by dou z जे डो बाई डो वाई प्लस वेक्टर के इंटू डो बाई डो जेड. dou by dou z. This is the meaning of divergence and the symbol is del. So if you want to find out divergence of F, then F will come here. If you want to find out divergence of R, then R will come here. And one more important thing is, sometimes in our question this value of R may be given, sometimes it is may not be given. So always remember the standard value of R is xi plus yj plus zk. It is the standard value of R always. This may be given in our question, sometimes they may not be given in our question. So we must understand what is the value of R. Now today I want to do it one question. What's the question? You can see you have to prove that अभी तक अपन क्या क्या पढ़े याद है ना आपको अच्छे से? अभी तक अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़े, यूनिट नॉर्मल के बारे में पढ़े, एंगल बिटवीन सरफेसेस के बारे में पढ़े. अभी अब मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ डाइवर्जेंस के. उसके बाद में आपको सोलोनॉइडल इरोटेक्टिल वेक्टर करने के बाद ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है. प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n into vector r power n into vector r is equal to the value of this one is n plus 3 n plus 3 n plus 3 into r power n. We have to prove this result. Okay, we start our solution में we know that अभी मैं आपको क्या बोला, what I said just now, sometimes the value of r will be given, sometimes the value of r will not be given. We have to understand. Okay, we know that what is the vector r value? Tell me. Xi plus YJ plus ZK. yj plus zk. It is the value of r, standard value of r. Now if you take the magnitude of this vector means what is that? How to find out the magnitude? Under root of
I square coefficient Square whole plus y square square plus z cube. plus j coefficient whole square plus k coefficient whole square. And already we know that magnitude of a vector of this is magnitude of r is equal to r only we are taking, that is equal to r. क्वेश्चन में रहता कभी कभी. This is equal to under root of x square plus y square plus z square. Now if I want to do it squaring on both sides, what happened? Tell me. r R square square value is equal to x square plus y square plus z square. exactly x square plus y square plus z square. It is the value of r. Okay. Any doubt in this? Yes. No. Now if this value of r, if I want to differentiate partially with respect to x, what's the answer? It means my question is 2x. what is dou r by dou x value? 2r. अच्छा Okay. 2x. क्या 2x होता है? plus 2y plus 2z. एक काम करेंगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. Just 1 second. If I am differentiating this value, differentiate partially with respect to x, then what will be our answer? What is the differentiation of r square? 2r now. 2r. Dou by dou x of r. It is equal to, with is respect equal to x means 2x. 2x. These two values cancel. Cancel. R we can divide that side. It means what is the value of dou r by dou x? Dou r by dou x is equals to x X by r. by r. Very good. Similarly, if I ask you what is dou r by dou y, then what is your reply? Y Dou by r. y by r. r आता. Yes. Dou r by dou y. That answer is y by r. y by r. And similarly, if I ask you what is dou r by dou z, okay, tell me what is dou r by dou z? R by z. Dou r by dou z. Partial differentiation with respect to z. What is the answer? Z by r. ओके, ये सिमिलरली है, फेयर एंड लवली नहीं होता, ठीक है ना. सिमिलरली फेयर एंड लवली में बहुत कम डिफरेंस रहता, गर्ल्स यूज करते हैं अपन लोग. चलिए कंटिन्यू करेंगे. फाइनली आपको किसकी वैल्यू करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n इनटू वेक्टर r. वेक्टर को अपन ऐसा बार भी लिख सकते हैं और ये एरो भी दे सकते हैं, दोनों भी आपका चॉइस है. नाउ as I said, whenever if you want to find out divergence of any value, it means you have to take the dot product with the del dot r power n into vector r. Okay, this is equal to, what is the value of del? As you know, I dou by dou x plus plus j dou by dou y dou by dou y plus k dou by dou plus z. k dou by dou z. This is dot product with r power n into vector r. Now look at, this is equal to I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. Dou by dou z. This is dot product with r power n as it is, and we know that what is the value of vector r? Vector r value is what? X by r plus y. xi plus yj plus zk. यही है ना r की वैल्यू? Yes sir. Yes sir. वेक्टर r की वैल्यू है ना जी, सिंपल वेक्टर r की वैल्यू. हाँ. Now we have to do the dot product between these two. We know that I dot I is 1. So if I want to write the direct answer, you can see I am writing the direct answer. 1 plus 1 plus 1.
डो बाई डो एक्स ऑफ आर पावर एन X. इंटू एक्स, करेक्ट। आई डॉट आई 1 मतलब डो बाई डो एक्स के साथ आर पावर Yes. एन इंटू एक्स मल्टीप्लाई होता, प्लस Yes, sir. प्लस डो बाई डो वाई ऑफ, कम एंड टेल मी, आर R पावर R power एन N. power n y. वाई प्लस डो बाई Do by do डो z. जेड ऑफ आर R power पावर n एन z. इंटू जेड। इसको बना देंगे अपन एक इक्वेशन नंबर 1। इसमें से एक काम करेंगे, क्या करेंगे, कोई तो भी एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बाकी फेयर एंड लवली लगा देंगे, मतलब सिमिलरली कोई तो भी एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डो बाई, पूरा काम नहीं करना, आप टाइम वेस्ट होता है आपका। आर पावर एन इंटू एक्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे खाली बस, राइट। अब Yes. देखिए सिंप्लीफाई कैसा होगा। हियर you know the formula of derivative of uv rule. If you don't know, I'll write it. Assuming this is u and this is v, assuming this is u and this is v, we have to apply the formula uv. What is the formula? For your convenience I am writing here d by dx सर of इधर R power N कांस्टेंट है ना सर, R को बाहर नहीं r निकाल power n सकते। constant कैसा होता, r power n constant है बोल के मल्टीप्लीकेशन वर्ड का यूज करें अपन ऐसा, नहीं करे अपन। फिर r constant होता ही नहीं, u d by dx of v plus v d by dx of u, ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, मगर अपने को यहाँ पार्शियली करना है। अब देखिए वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, यूवी वाला फार्मूला लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, आर पावर एन एज इट इज, है ना। डो बाई, थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स एज इट इज, एक्स एज इट इज, डो बाई डो एक्स ऑफ आर पावर एन, करेक्ट। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, आर पावर एन एज इट इज, differentiation of x partially with respect to x becomes 1 plus x as it is. Here which formula we have to apply? X power n. What is the derivative of x power n formula? nx N power into X power N n minus 1. माइनस वन, मालूम है ना। तो इसको अगर मैं अप्लाई करा यहाँ पे, n x पावर n माइनस वन इंटू इनर फंक्शन, दैट इनर फंक्शन इज डो बाई डो एक्स ऑफ आर ओनली। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करें अपन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करें इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन मतलब ये फार्मूला पावर का डिफरेंशिएशन है, एन एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स का नहीं होता, खाली पावर का है, फिर एक्स को अलग से करना पड़ा। तो इंटर फंक्शन इसमें आर होता, तो आर का डिफरेंशिएशन सेपरेट हो गया। एनी डाउट, एनी डाउट इन दिस? No, no. पहले No, पावर को sir. डिफरेंशिएट करें एन एक्स पावर एन माइनस वन से, फिर आर को अलग से कर लिए। आर पावर एन एज इट इज, ये एन एक्स बी एज इट इज, एन एक्स लिख रहा हूँ मैं, आर पावर एन माइनस वन बी एज इट इज। ये डो बाई डो एक्स ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पहले ही अपन निकाल लिए थे, देखो एक्स बाई आर बोलते है ना, निकाल लिए ना। Yes, sir. तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको शायद मेरे को करना पड़ेगा दूसरे पेज पे, या नहीं तो यही कर लेंगे, जस्ट वेट। डो बाई डो एक्स ऑफ आर पावर एन इंटू एक्स, एंड दैट सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू, नाउ टेल मी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट हैपेंड। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टेप, आर पावर एन एज इट इज प्लस एज इट इज, this x into this x becomes together x square, this n as it is, ये r पावर n माइनस वन है, यहाँ पे r का पावर वन है, इसको ऊपर लेके चले गए तो ये होता r पावर n माइनस टू होता। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड दिस इंपॉर्टेंट स्टेप इज इंपॉर्टेंट। समझ में आया? ये r पावर वन है ना, न्यूमरेटर में ले जाके इसके साथ मर्ज कर देंगे, n माइनस वन मतलब n माइनस टू हो जाता, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता, n एज इट इज है, r पावर n भी एज इट इज है। डाउट है इसमें? No, sir. अब करेंगे डो बाई डो वाई ऑफ, ये अपन कर रहे हैं सिमिलरली वाला केस, आर पावर एन इंटू वाई वाला केस। कैन यू टेल मी द आंसर, वेयर इज द डिफरेंस विल कम? आर पावर एन तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये एन एज इट इज रहेगा, आर पावर एन माइनस टू भी एज इट इज रहेगा। सिमिलरली
dou by dou z of r power n into z. What's the answer of this? Again r R power power n n plus plus z square. z square into n into r power n R n minus, minus 2. right? अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वी हैव Yes. टू ऐड इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये पूरे चीजों को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे इसको ऐड करेंगे। समझो, चलिए देखिए, when adding this value it means dou by dou x of r power n into x plus dou by dou y of r power n into y plus, please don't compromise with a single step also। एक सिंगल स्टेप भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, देख लेंगे बाद में पूछ लेंगे, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ, वो सब नको, जो भी है अभी पूछ लेना है। अब मैं ऐड कर रहा हूँ ये वैल्यू, कहाँ पे अपना, कहाँ है पॉजिटिव, यहाँ पे, हाँ नाउ एडिंग, देखिए आर पावर एन प्लस आर पावर एन प्लस आर पावर एन कितना हो गया, कितना हो गया, आर पावर एन प्लस आर पावर एन प्लस आर पावर एन कितना हो गया, 3 R power n. 3 आर 3 पावर। R power n. और इधर जब ऐड करेंगे एन आर पावर एन माइनस टू, 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 सब में आ रहा, मतलब क्या है, कॉमन है। ये तो हो गया 3 r पावर n, 3 r पावर n हो गया, प्लस अगर मैं सब में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, एन आर पावर एन माइनस टू को अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये क्या बचता मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए वो पेज पे जाकर वापस, बीच में एक पेज छूट गया। ये तीनों वैल्यू ऐड हो गए, एन आर पावर एन माइनस टू अगर अपन कॉमन ले रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चलो दिस इज इक्वल टू 3 r पावर n एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पे बोल सकते हैं, कमान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर, है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, हाँ सर. so this is r square, here we have to write r square into n r power n minus 2. Now look at these two, bases are equal, power should be, come on give me the answer। Added. ये क्लास आप लोगों की है, मेरी नहीं होती। n bases are equal, power should be added, r power minus 2 and r power plus 2 will be cancelled, 3 r power n left out। इन दोनों में से कॉमन क्या आता, r power n आता ना कॉमन, R power n. so finally n plus 3 into r power n will be the answer of this question। ओके प्रूफ, दैट्स इट। देखिए क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, डाइवर्जेंस ऑफ r पावर n into r की वैल्यू n plus 3 into r पावर n, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस, गॉट इट। सर Yes एक sir. बार यूवी रूल अप्लाई करने के बाद में थोड़ा और बोलिए ना सर. कहाँ पर, इसमें यूवी रूल अप्लाई करें यहाँ अपन. कर रहे थे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन जी. डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट r पावर फंक्शन n जी. एज इट इज, डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स बिकम्स 1, ये x एज इट इज। नाउ हियर वी हैव टू अप्लाई x पावर n फार्मूला, मतलब ये पहले पावर को डिफरेंशिएट करना, nx पावर n माइनस हम्म. 1 कर दिए, फिर ये r को अलग से कर, ये हम्म. डो आर बाई डो एक्स की वैल्यू पहले ही अपन निकाल लिए थे, x बाई आर यहाँ लिख दिए, इसके बाद ये x को ये x के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बना दिए, ये n को यहाँ पे लिख दिया आगे, और इसके बाद ये r पावर n माइनस 1 है, ये ऐसा है देखिए, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये r पावर एक n माइनस 2 है और वहाँ पे एक 1/r है, तो इसको इसको मर्ज करना तो कैसे करना है, r पावर n माइनस 2, इसको ऊपर लेके जाके r पावर माइनस 1 कर दे,
और यहाँ पे पहले से ही n हम्म, -1 है और 2 ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये ऊपर जाके माइनस, तो टुगेदर हो जाता माइनस, राइट। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे करेगा। समझ में आ गया। ओके सर। चल, एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी और एक भी है, करेंगे नेक्स्ट पेज पे। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर, इसकी वैल्यू 3 होती है, बल्कि प्रूफ करना बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान। कैसे प्रूफ करेंगे? डाइवर्जेंस ऑफ आर का मतलब, टेल मी। डाइवर्जेंस मतलब डेल, डेल डेल। डॉट आर। del of r नो, डेल डॉट आर। dot r Del means we know that I dou आई by डी dou x बाई डी do by एक्स do plus प्लस जे दो plus बाई दो j do by do y plus j dou k by do dou by y do z. plus k दो बाई dou दो by dou जेड z, इंटू dou z, आर। dou z, not into, it's a dot. This is a special type of multiplication. Okay, it's not into. ये एक ओके special type का multiplication है. We can't say that it is into. R value, we know that R value. What's R value? Xi सर, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड plus yj plus zk. Even though the value is not given, we have to assume our value. The value of R standard value is xi plus yj plus k. Now we know that dot product I dot I is 1. So what's left of? Dou by डी बाई डी दो dou एक्स by ऑफ dou x एक्स of x plus j dot j is 1 means dou by dou y of y plus k dot k is 1 means dou by dou z of z. Now we know that it is equal to 1. This is value वन is प्लस 1, वन प्लस वन 1. So finally answer is 3. That's it. थ्री। ऐसा ये प्रूफ हो टेंस जाता है। प्रूफ। डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है ना। डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना, राइट। डाइवर्जेंस का मतलब कोई भी वेक्टर का डाइवर्जेंस करना मतलब डेल डॉट करना, ठीक है। इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अच्छे से देखना है आपको। फाइंड फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ, मतलब फिर से डेल डॉट एफ करना है ना, सही है ना। वेर 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 दिस एफ इज इक्वल टू, एफ भी अपने पास क्लियर नहीं है, एफ को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हूँ। एफ इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz। अच्छा, अपना कुछ मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चन अधूरा रह गया था ना, मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चन अपना अधूरा रह गया था, टाइम होने से मैं कुछ स्टॉप कर दिया था, याद है आपको? हाँ सर, रुक गया था। हाँ, तो वो क्वेश्चन को भी अगर अपने पास अब टाइम है तो उसको कंप्लीट कर देना है, या फिर आप लोगों का करिए ठीक है। ना। एफ की वैल्यू ग्रेड मैं ट्राई ग्रेड, करा सर, वो प्रॉब्लम वो शाम में बताएंगे बोल के नहीं दिखाया आपने। नहीं वो अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई ना जी, अपन क्या कर सकते हैं। हाँ सही है सर। कुछ चीजें अपने हाथ में तो नहीं रहता। चलो अच्छा ही हुआ, जो भी है अल्लाह की तरफ से हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो व्हाट इज गिवन एफ वैल्यू? ग्रेड ऑफ, बोलिए, एक्स क्यूब, ये गिवन वैल्यू है। जी सर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस x जेड cube क्यूब plus y प्लस cube plus z थ्री। cube 3xyz. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, 3xyz। तो चलिए, ग्रेड का मतलब क्या है, कोई बोल सकते हैं? अपन इससे पहले भी करे थे,
लेट अस एक काम करेंगे, राइट डी बाई डी एक काम ग्रेडियंट। करेंगे, लेट अस, हाँ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब वही डेल की वैल्यू। लेट अस अज्यूम दैट अगर डेल फाई को अपन ऐसा ले लिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री थ्री एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, तो ये अपना एफ कैसा बन जाएगा? बोलिए, एफ कैसा बन जाएगा? एफ इज इक्वल एफ टू ऑफ ग्रेड ऑफ ग्रेड फाइव फाई बन जाएगा, राइट। ग्रेड का मतलब क्या? आई डो बाई डो आई एक्स ऑफ फाई जेड प्लस जे डो बाई दो बाई फाइव ऑफ डो बाई फाइव ऑफ फाई प्लस के डो बाई डो जेड ऑफ फाई। नाउ लुक एट, ये आई एज इट इज, क्या करना है? फाई को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए आंसर, बोलिए आंसर, बोलिए। थ्री आई इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई जेड 3x प्लस थ्री वाई जेड, 3x² प्लस 3y² समझ में प्लस आ रहा है आपको 3z। इसका मतलब? थ्री वाई जेड प्लस जे कैप इंटू विथ रेस्पेक्ट टू वाई, थ्री थ्री वाई वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई एक्स जेड प्लस थ्री वाई चले जाएगा एक्स जेड ना, xz बचता। एक्स जेड प्लस के कैप a इंटू कैप प्लस ए इंटू थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर 3z प्लस स्क्वायर थ्री जेड स्क्वायर थ्री प्लस वाई जेड xy थ्री 3xy। एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई। अब आप देख सकते हैं अपना जो एफ था वो एकदम क्लियर हो गया है ना? अपना एफ जो है अब वो क्लियर हो गया है, वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन बन गया है। अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ एफ करना अब अपने लिए आसान हो जाएगा। देखिए आप, डाइवर्जेंस ऑफ एफ that is equal to, what is that answer? Del del dot f, right? Now what is del? What is the value of del? I आई dou by दो dou x बाई दो एक्स plus प्लस जे j दो बाई dou दो by dou वाई y। देखिए करना वही है, पर थोड़ा ध्यान से करना है। अपने को कुछ भी नई चीज नहीं पूछ रहा है इसके अंदर, डेल के ऊपर पूरे डिपेंड कर दिया। थोड़ा दिलचस्पी से ध्यान से करे तो बस है। अब ये जो एफ की वैल्यू आई है वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, वो लिखना है यहाँ। क्या आई है? थ्री एक्स स्क्वायर, कोई तो भी देख लीजिए एक बार, मेरे को डायरेक्ट वहां से बोलना। थ्री एक्स स्क्वायर थ्री वाई जेड, थ्री वाई स्क्वायर थ्री एक्स जेड, थ्री जेड स्क्वायर थ्री एक्स। बोलिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई जेड, उसके साथ में क्या है? आई है, प्लस नेक्स्ट बोलिए, थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री, कमन, एक्स जेड इंटू जे प्लस, कमन, अरे बोलो बाबा, थ्री जेड स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई इंटू के। इंटू टू यही है, कुछ अलग है? यही है ना? डॉट प्रोडक्ट तो करने यस। आता ये ना आप चाहिए लोग? डॉट प्रोडक्ट तो करने आता। मतलब क्या है? हाँ। आई डॉट आई इज वन, दो बाई दो एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई जेड, प्लस जे डॉट जे इज वन, मतलब दो बाई दो वाई ऑफ, समझ, बोलिए। दो बाई दो आया 3y² थ्री प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xz। थ्री जेड यस, जेड थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स जेड प्लस दो बाई दो जेड ऑफ प्लस दो बाई दो जेड ऑफ थ्री जेड स्क्वायर प्लस थ्री एक्स थ्री जेड स्क्वायर प्लस 3xy। थ्री एक्स वाई। नाउ फाइनली finish this problem with respect to x. What's the answer?
6x. 6x plus 6y plus 6z. Very good. 6x plus 6y plus 6z. Now if you take 6 common, what's the answer? अगर आप नहीं भी लिए x तो नो plus y प्रॉब्लम. plus z. अगर आप 6 6x कॉमन plus अगर y नहीं plus भी z. लिए तो भी नो प्रॉब्लम. x प्लस y Y प्लस plus z. z. ये हो गया तीसरा क्वेश्चन डाइवर्जेंस से रिलेटेड. ठीक है. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो आप लोगों का खुद ट्राई करना है. उसके बाद ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है प्रूव दैट डेल स्क्वायर इंटू आर पावर एन इज इक्वल टू n into n plus 1 into r power n minus. You have to prove this result. ठीक है. तो r की वैल्यू आर स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है ऑलरेडी. मैं आपको थोड़ा सा हिंट करके जाता हूँ. डेल स्क्वायर आर पावर एन का मतलब, डेल स्क्वायर आर पावर एन का मतलब डेल डॉट डेल आर पावर एन. तो डेल की वैल्यू तो आपको पता है, आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड. Yes. इसका डॉट प्रोडक्ट, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है. ओके. डेल पावर हाँ. ए, डेल इंटू आर पावर एन का मतलब क्या होता, कोई बोल सकते हैं? आई इंटू I dou by dou x of r आर power पावर n. एन. वेरी गुड. आर पावर एन प्लस जे इंटू डो बाई डो वाई Dou by ऑफ dou आर y पावर of r power n. एन. आर पावर एन प्लस के वेक्टर के इंटू डो बाई डो जेड ऑफ R आर power पावर n. एन. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट्स योर आंसर? आई डॉट आई 1. मतलब आपको ऐसा आता, देखिए मैं खाली हिंट करके जा रहा हूँ आपको. डो बाई, सॉरी नॉट डो, डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर ऑफ, होता ना, मल्टीप्लाई होता ना, R डबल power n. आर पावर जी एन सर. प्लस दूसरा वाला डो स्क्वायर बाई Dou square by dou y डो square वाई plus स्क्वायर Y ऑफ r square. power n. आर पावर एन जी. प्लस डो स्क्वायर इंटू डो जेड Dou स्क्वायर z square. R आर power n. पावर एन. लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव टू टेक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसके अंदर आपको ये वैल्यू इंडिविजुअली फाइंड आउट करना है. तो कैसा करना है उसको भी हिंट दे देता हूँ मैं आपको. ठीक है. मैक्सिमम काम तो मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी हो जाएगा. डो स्क्वायर बाई डो एक्स स्क्वायर ऑफ आर पावर एन का मतलब, आर पावर एन का मतलब डो बाई डो एक्स ऑफ डो बाई डो एक्स ऑफ डो बाई डो एक्स ऑफ Dou by dou x of r power n. आर पावर एन. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये ऐसा आएगा, डो बाई डो एक्स ऑफ आर पावर एन की वैल्यू एन आर पावर एन माइनस 1 इंटू इनर फंक्शन मीन डो बाई डो एक्स ऑफ आर. तो इसका और सिंप्लीफिकेशन आप देखें तो डो बाई डो एक्स ऑफ, दिस इज एन एज इट इज, आर पावर एन माइनस 1 एज इट इज, और डो एक्स बाई डो आर की वैल्यू एक्स बाई आर है. एक्स बाई आर. तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आर की वैल्यू ऊपर चले जाएंगे. तो ये होता है एन एक्स पावर, सर n-2 हो जाता है. हाँ एन एक्स पावर एन एक्स आर पावर एन माइनस, एन एक्स आर पावर एन माइनस टू को फिर से डिफरेंशिएट करना. राइट. जी. एन को जी. कांस्टेंट को आउटसाइड निकाल के, समझे बात को आप? देखिए मैं थोड़ा सा हाँ सर. और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ. ये ऐसा आता है, डो बाई डो एक्स ऑफ, ये आप लोगों को करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ ये काम. एन एक्स आर पावर एन माइनस टू हो जाएगा ये. और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एन को बाहर निकालना और इसको डिफरेंशिएट करना, डो बाई डो एक्स ऑफ
मैं आपको 60% वर्क करके दे दे रहा हूँ। एक्स आर पावर एन माइनस टू को आप यूवी रूल से सॉल्व करिए, है ना। फर्स्ट फंक्शन इज दिस वन, सेकंड फंक्शन इज एन एक्स पावर एन माइनस वन के फॉर्मूले से करिए। उसके बाद ये जो भी आंसर आया इसका आंसर, वो तीनों आंसर्स को ऐड कर लीजिए, फाइनली आंसर आपको ये आएगा एन इंटू एन प्लस वन आर टू द पावर ऑफ एन माइनस टू। ये प्रॉपर्टी आपको खुद से करना है, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, तो मैं ये क्लास यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। आप लोग ओके। तो देख लीजिए जो भी है। कल फ्राइडे है तो कल मॉर्निंग में क्लास अपनी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो 12:30 को तो नमाज से जाना होता है, इसलिए आज इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक। राइट, ओके। पीडीएफ जी और रिकॉर्डिंग ओके। भेजा